वेलकम टू प्रिंस शॉर्ट एंड हाउस। स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल प्रिंस शॉर्ट एंड हाउस के नाम से उसमें हम करा रहे हैं सर पिटमैन न्यू कोर्स, बेसिक कोर्स, और लगभग कोर्स ख़त्म है लेकिन बेसिक में अभी हम डिक्टेशन आपको दे रहे हैं क्लासेस में। और ये हमारी 43 नंबर क्लास है। और मैंने जब लास्ट क्लास में, लास्ट से पहले मैंने क्लास में जब एंड किया था कि 125 आपकी हो गई, और लिस्ट मैंने बताई थी आपको, लिस्ट 1, 2 और 3 वो आपने अच्छी तरह से कर लेंगे। उसको रिवीजन करते रहिए। और ये हमारी बेसिक्स की क्लास है। जैसे मैंने बताया कि ये जो अब चल रहा है, ये स्टूडेंट जो हमारे अभी कोर्स एंड जिनका कोर्स एंड होने वाला वो भी लिखेंगे डिक्टेशन, और 2 बार रीडिंग करेंगे, टाइपिंग करेंगे, प्रिंट आउट निकाल के चेक करेंगे। ये हर दिन रहेगा। और जो रूल रिवाइज करे जा रहे हैं वो सारे रूल उन स्टूडेंट्स के भी काम आएंगे जो स्पीड पे हैं, अच्छी स्पीड पे हैं, वो भी इसको फॉलो करें। रूलों को याद करने के लिए, उनको याद हो जाए, इसलिए मैं ये आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो आज हमारी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 125 से। अबाउट 15 मिनट रहेगी हमारी डिक्टेशन। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आज फाइनल सर्कल्स और फाइनल हुक और फाइनल लूप्स के रूल। तो हमारी डिक्टेशन अब स्टार्ट हो रही है। रेडी? 125 स्टार्ट। वी थिंक देयर इज no longer any doubt that within the next few years the motion picture industry will undergo a market change. We are informed that the natural gas industry has a wonderful future. Please do not ship the remainder of our order until the later part of September. We can send you information of a general nature only. If you need further particulars, therefore, it would be better to arrange for an interview with the writer of this letter. Our sales increased in November and December, and we hope that the improvement will be maintained for the remainder of the winter. Educators in the past few years have taken great interest in the development of character, for it is believed that the nation's future depends upon the character of its citizens rather than upon their knowledge. I am interested in your refrigerator. Will you kindly send a full description of it as well as the total cost installed in my home? I wish to install a refrigerator not later than the end of this week, so I shall be obliged if you will let me have this information promptly upon receipt of this letter. The invention of the typewriter rendered shorthand a very valuable art. In order to meet the demands of the business world, it is necessary to be an accurate shorthand writer and a skillful operator of the typewriter. The two subjects are sometimes called the twin arts. The object of your shorthand training is to enable you to take dictation so that you may write the matter dictated rapidly. In order that you may acquire a high degree
of skill in writing from your shorthand notes. You should typewrite the letters or other matter dictated in your lessons as often as you possibly can. नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 126, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और कॉमे का जजमेंट आपको लेना है। जो ज्वाइनिंग है उनको मैं इकट्ठा ही बोल रहा हूँ, हमेशा ही बोलता हूँ, ज़रूरी है आपको ज्वाइनिंग करनी है ताकि आपकी स्पीड बने अच्छी। रेडी, स्टार्ट। विद इन लास्ट फ्यू ईयर्स द नंबर ऑफ मोटर स्कूटर्स मेकिंग देयर वे along the roads of our country has been rapidly increasing, and we think there is very little doubt that this method of travel has a great future. The motor scooter has in many cases replaced the bicycle of earlier days because it is swifter and smarter. It has many supporters, especially in the remoter districts which are out of the way of the railways, where it represents a means of bringing people into closer touch with the large centers. Because of the small size of the motor scooter, which renders it easy to manage on narrow roads, many people are favorably disposed towards it. This feature can be better understood if we picture a large vehicle seeking to pass a scooter on a narrow road. Those who object to motor scooters do so because, in their opinion, motor scooters are adding to the amount of traffic already on our roads. But the scooter is safer and less noisy than the motorcycle and will, we think, be used by more and more people in the future. Exercise number 126. Ready? Start. My dear sir, on behalf of our clients, Messrs. Cantor and Walter, who have requested us to represent their interests in the matter of the leasehold on the building at 129 Wharf Street, we wish to inform you that we have their permission to obtain a court order under the terms of which you will not be able to alter the front of the building. We think there is no doubt that the terms of the lease have been violated, and in our opinion it will be to your interest to stop any further operations until a decision has been rendered by the court. Very truly yours. Next exercise number 128. Ready? Start. Dear Mr. Tyler,
This letter will introduce to you Mr. Robert P. Johnson, who is in your city on business for his company. His firm has undertaken a contract of some magnitude in the planning of a community center for this city, and consequently Mr. Johnson is anxious to study at first hand what has been accomplished in your city. I am confident that you will do all you can to make Mr. Johnson comfortable while he is with you, and I shall consider all that you do for him a very great favor to me. Sincerely yours. Gentlemen, in response to your communication of 14th September, we are sorry to say that we cannot consider your request for an exclusive agency for the sale of our goods in your city. It is contrary to our policy to restrict the sale of our merchandise to any one wholesale firm in a city, and for this reason we cannot take advantage of your offer. We are sure that you will recognize that in fairness to all our dealers, it is impossible to make a departure from our policy. If you will continue to handle our goods at the usual wholesale terms, we are sure that you will be completely satisfied with our sales. The new lines we have recently introduced have met with considerable favor all over the country, and we are confident that they will sell to your complete satisfaction. Very truly yours. तो स्टूडेंट्स आज इस क्लास में क्लास नंबर हमारी 43 में यही रहेगा। 128 तक आपको अगर एक नहीं लिखी जा रही है एक बार में तो दोबारा लिखिए और रीडिंग करने के बाद इसको टाइप करके प्रिंट आउट लेकर चेक कीजिए। सीरियसली करेंगे तो स्पीड जल्दी बन जाएगी। अब मैं आपको जैसे मैंने बताया था फाइनल सर्कल्स, फाइनल लूप और फाइनल हुक के बारे में डिटेल से बताऊंगा, जो सबके काम आएगी, जो इस लेवल पे हैं और जो इस लेवल को पार करके स्पीड पे हैं। अभी कराते हैं। तो स्टूडेंट जैसे मैंने बताया 43 हमारी क्लास है और मैं आपको फाइनल सर्कल्स और फाइनल लूप्स के बारे में आज बता रहा हूँ। और मैं आपको एक विशेष सुझाव देना चाहता हूँ। एक आपको जो जल्दी कामयाब होना, स्टेनोग्राफर बनना है, तो सिर्फ मेरी एक मिनट की बात सुने और उसको अगर आप फॉलो करोगे तो जल्दी कामयाब हो जाओगे। आपको एक जुनून के साथ शो अटेंड करनी है, रिटर्न की तैयारी करनी है। टाइमिंग जैसे एक मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि टाइम मैनेज करके आपको बनाना है। इसके साथ ये भी है कि आपको अपनी यारी दोस्ती, रिश्तेदारी, पास पड़ोस वो सब भूलना पड़ेगा अपने टारगेट तक। सिर्फ टारगेट पे नज़र रहनी चाहिए। मोबाइल का यूज़ उतना होगा जितना आपको डिस्टर्ब ना करे। तो प्लीज़ टारगेट लेके कीजिए। तो मैंने बताया कि मैं फाइनल सर्कल्स और फाइनल लूप्स के बारे में आपको बताऊंगा आज। तो सबसे पहले हमारा जो एस सर्कल है वो तो मैंने बताया था कि भाई स्टार्टिंग में बताया था आपको भाई एस सर्कल कैसे होगा। ये फाइनल में भी है। फाइनल में एस सर्कल वही है, कर्व के अंदर की तरफ रहेगा, स्ट्रेट डाउन के राइट साइड रहेगा
अपवर्ड के अपर साइड, इसके अपर साइड। फिर हमारे लूप की बात आती है, एस टी लूप। एस टी लूप भी अकॉर्डिंग टू रूल होगा, जो हमारे एस सर्कल के रूल है उसी के अकॉर्डिंग फाइनल में आएगा। एस टी लूप सेम पोजिशंस रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। तो हमारा एस सर्कल और एस टी लूप सेम रहेगा। और उसके बाद हम आते हैं एक एस टी आर फाइनल। जैसे ये एस टी लूप है, एस टी और एस डी फाइनल बड़ा अच्छा है, वो 1/3 में चला जाएगा, एस टी आर हो जाएगा। लाइक फास्टर, ये फास्ट है, हाफ में लेना है। मास्टर, पोस्टर, इसके बाद एस भी आ जाए तो पोस्टर्स, मास्टर्स, फास्टर्स। यस, यही हमारे फाइनल सर्कल और लूप है। अब इसके बाद एक हमारा सर्कल फाइनल और जो फाइनल सर्कल है उसके बारे में बताता हूँ कि ये तो एस है, एक हमारा फाइनल में होता है, एस से ही रिलेटेड है फाइनल और मिडल। मिडल में आता है, फाइनल में आता है, अकॉर्डिंग टू रूल है। आप पिटमैन की बुक में जाकर उन रूल्स पे जाइए जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको उस रिवीजन में जाइए, आपको समझ में आएगा क्या है कि फाइनल एस ई एस और एस ई जेड। ये एस, इसको बड़ा सर्कल करके हम एस ई एस और एस सी जेड यूज करते हैं, जबकि मिडल में ओनली एस ई एस ही यूज होता है, ये वाला। अब हमारा इस सर्कल के बाद आएगा फाइनल में एन एस। एन एस को मैं ये बताता हूँ, पहले लूप एन एस के फाइनल हुक के बारे में बताऊँगा। तो सर्कल्स हमारे यही रहेंगे जो मैंने बताया, एस सर्कल रहेगा और आपका एस सी एस रहेगा और एस ई जेड रहेगा फाइनल में, और एस टी आर लूप रहेगा। अब जैसे मैंने बताया फाइनल हुक्स के बारे में, ये मैंने रोक दिया इसलिए कि आपको समझ में आएगा कि एन एस कब हो जाएगा, एन एस एस कब हो जाएगा। फाइनल हुक, फाइनल हुक कौन कौन से हैं? एन हुक है हमारे पास, एफ और वी, इसको एक ही कंडीशन में रखेंगे, एफ और वी, और शन, ये हमारे फाइनल में हुक रहेंगे। तो जो एन हुक है हमारा कर्व के इनसाइड रहेगा, स्ट्रेट डाउन के क्लॉकवाइज मोशन, याद कीजिए एस सर्कल एंटी क्लॉकवाइज था और क्लॉकवाइज मोशन में हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक में रहेगा एन हुक। अब जो मैं वहाँ पे पॉइंट रखा था कि अगर हम इधर सर्कल कर देते हैं छोटा तो ये एन एस हो जाएगा। रूल को देखिए ध्यान से, कितने ही स्पीड वाले बच्चे मैंने पकड़े हैं, एकदम पकड़े हैं कि एन एस बोला एस बना दिया। रूल पे जाओ, गलती होगी, पक्का गलती होगी, टाइपिंग करोगे उस वर्ड को गलत होगा ही होगा। आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि एन एस सर्कल क्लॉकवाइज मोशन बनेगा, स्ट्रेट कॉन्सोनेंट में कर्व के इनसाइड बनेगा, फाइनल हुक बनेगा, लेकिन कर्व के अंदर की तरफ सर्कल एन एस नहीं होगा कभी भी, सिर्फ स्ट्रेट्स में होगा, स्ट्रेट जो कॉन्सोनेंट है उनमें रहेगा। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि ये आपका क्लॉकवाइज मोशन में है, और इसी को हम बड़ा कर देते हैं तो ये एन एस एस हो जाएगा, क्योंकि बड़ा हो गया, एन हुक की तरफ चला गया, ये एस नहीं है, जैसे हमारा एस था और ये एस एस था। आपको समझना पड़ेगा, ये बड़ा हुक एन हुक की तरफ, बड़ा सर्कल एन हुक की तरफ हो गया तो एन एस एस हो जाएगा। जबकि एस टी लूप भी फाइनल लूप होता है स्ट्रेट कॉन्सोनेंट में। अब ये लूप इधर आ गया तो एन एस टी आ जाएगा, समझना होगा, एन एस टी आ जाएगा। इससे कितनी इजीएस्ट आउटलाइंस हमें मिलती हैं। आपको रूल पे जाना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू रूल आपको आउटलाइन बनानी पड़ेगी। तो ये चीज़ मैंने बताया फाइनल सर्कल्स। अब फाइनल में हमारा एन एस के बारे में मैंने स्पेशल बताया और एन हुक की तरफ आ गया। लेकिन यहाँ पे अब एक चीज़ और भी है कि जब किसी कर्व के बाद एन है हुक और उसके बाद ऐसा आएगा, यानी कि एन एस हो जाएगा, तो वो ऐसे ही रहेगा, अंदर की तरफ हमारा सर्कल बनेगा। इस चीज़ को ही ध्यान रखिए। और अकॉर्डिंग टू रूल बनता है, किसके साथ लाइट साउंड है एन सी तो नहीं बनेगा, फिर एन और एस बनेगा।
उन रूल्स पे जाइए। यहाँ पे स्टूडेंट स्पीड वाले फिर गड़बड़ करते हैं, किसी में भी NS बना देते हैं, किसी में भी NS बना देते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू रूल जाओगे तो आउटलाइन में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको जो फाइनल में चल रहे हैं हम हुक के, जैसे अभी तो सर्कल में ये हुक बता रहा था, तो इसके साथ में मैंने इसके सर्कल भी बताया क्योंकि रिलेटेड है N से। अब हम F और V पे आते हैं। F और V क्या है? ये फाइनल हुक है, ये किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक में एंटी क्लॉकवाइज मोशन, इट मीन्स जो N हुक है ना, हमारा N हुक है, उसके अपोजिट F और V, यानी कि जो हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक है, S सर्कल होता है ऊपर, ये N है, ये N हुक है। अगर इसमें F और V आएगा तो ऊपर ही आएगा अकॉर्डिंग टू सर्कल, सर्कल की तरफ ये F या V रहेगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पे F V को कभी ऐसे बना देते हैं, कभी आप N को ऐसे बना देते हैं। इसको समझना पड़ेगा, रूल को बिठाना पड़ेगा अच्छी तरह से, ताकि आपकी स्पीड में कोई गलती ना हो। डीपली समझना पड़ेगा आपको इस गलती को, ये गलती ना हो, इसीलिए मैं इनको रिवाइज कर रहा हूँ इन हुक्स को। अब रही बात कि ये जो F और V है ये ओनली स्ट्रेट कॉन्सोनेंट में ही आएगा, बिकॉज अगर कर्व के अंदर हमारा सर्कल है तो NS है, तो कर्व के अंदर कभी भी F और V नहीं आएगा, नॉट एप्लीकेबल। ये ध्यान रखना कि कर्व के इनसाइड या मतलब कर्व के साथ F और V फाइनल कभी आता ही नहीं है। ये बात ध्यान रखिए आप समझ के कि भाई नहीं आएगा। अब हम आते हैं शन हुक में, कितना बढ़िया है, बहुत सारा जो शन हमें कैसे भी मिलता है, समझिए कि सन साउंड जैसे भी मिलती है हमें, SHUN से मिलती है, SUN से मिलती है, SHAN से मिलती है, कैसे भी मतलब शन मिले हमें, साउंड शन मिले, बस शन और शन जैसे भी शन ये मिले। तो इसके लिए सिंपल रूल है, जैसे N हमारा कर्व के अंदर छोटा हुक है, इसको हम हुक को बड़ा कर देते हैं तो शन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू रूल बता रहा हूं कि कर्व के इनसाइड बनेगा बड़ा हुक फाइनल तो शन होगा। जबकि स्ट्रेट स्ट्रोक्स में एक रूल है कि जो हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक के शन के रूल हैं उसके लिए स्पेशल है कि कर्व के तो इनसाइड हो गया, उसके बाद है कि एक तो हमारा है रूल सिंपल सा कि शन हुक जो है किसी भी सिंपल स्ट्रोक्स में, सिंपल का मीन्स है कि राइट साइड ऑफ सिंपल स्ट्रेट स्ट्रोक्स, इसमें जैसे शन शन वही है कि हम जो बना रहे हैं जो सिंपल स्ट्रेट स्ट्रोक है उसमें हम S सर्कल की तरफ मतलब S सर्कल की तरफ बना रहे हैं, शन बनेगा। सिंपल का मीन्स ये है इसमें कि भाई जिसमें विदाउट वावल है, और एक रूल हमारा बिफोर TD चे जे और इथ, TD स्टिल रूल है, चे जे और इथ शन आएगा, नहीं तो आर का रूल है, छोड़ो। इनके राइट साइड आएगा TD चे और जे, इनके राइट साइड आएगा। सिंपल है, यानी कि इसमें क्या है कि अटैचमेंट नहीं है, सिंपल है। चे है राइट साइड, टी है राइट साइड। अटैचमेंट का मैंने इसलिए बताया कि स्ट्रेट के साथ में जो एक्चुअल में पहले रूल है वो है कि भाई किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक में हम शन हुक जब बनाते हैं तो उसमें देखते हैं कि इनिशियल अटैचमेंट, इनिशियल अटैचमेंट ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक में मान लो एस सर्कल इधर है, शन आया ये आ गया, कोई हुक है अटैचमेंट है तो इसके अपोजिट आ गया, मान लो कोई हुक इधर है तो इधर आ गया। ये सिंपल रहेगा कि किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक में शन हुक उधर आएगा जो शन से पहले अटैचमेंट है,
आउटलाइन के बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी। और इसमें सिंपल के लिए जो मैं अभी बता रहा था टी, डी, चे और जे, इसके राइट साइड ही आएगा, बिकॉज अटैचमेंट नहीं चाहिए। चे राइट साइड, टी राइट साइड, अटैचमेंट नहीं चाहिए, ये सिंपल है। और फिर एक रूल आता है कि इनमें तो हमने ये देख लिया कि शन से पहले जो अटैचमेंट है उसके अपोजिट साइड आएगा, लेकिन इनके राइट साइड आ गया टी, डी, चेजे और इत, टी, डी, चेजे के राइट साइड आ गया। तो जो अदर सिंपल स्टेट स्ट्रोक्स हैं जिनमें अटैचमेंट नहीं है उसमें शन होगा अपोजिट ऑफ वावल, लास्ट वावल। जैसे हम एक वर्ड लिखते हैं एक्शन, ये मैंने क्लास में डीपली समझाया था, तो शन ये आएगा, बिकॉज वावल उधर है तो शन नीचे है। कॉजन वर्ड आ जाएगा, वावल नीचे है तो शन ऊपर आ जाएगा। जो मैंने बताया सिंपल टी, डी, जे के राइट साइड आएगा, और जो अदर सिंपल स्टेट स्ट्रोक्स हैं उनके लास्ट वावल के अपोजिट साइड। तो ये ज़रूरी है। यहाँ पे बच्चे स्पीड में बहुत गलती करते हैं, दोनों वर्ड सेम है, अगर ये विशेष ध्यान नहीं रखेंगे तो वावल तो हमें लगाना नहीं, वो ऐसे ही बना रहा है कॉजन और एक्शन, या ऐसे बना रहा है, यहाँ गलती होगी। जब आपको ये रूल याद रहेगा कि शन से पहले जो वावल है उसके अपोजिट आ रहा, तो सिंपल है, वावल मत लगाओ, एक्शन, कॉजन, किसी में भी रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया फाइनल है ये। इसमें एक चीज़ और भी आई है शन में ही, कि किसी वर्ड में एस सर्कल आ गया और फिर शन आया तो कर्ल के रूप में, पोजीशन, अपोजिशन, अकॉर्डिंग टू रूल। तो एनएस के बाद भी आ सकता है ये, कभी एनएस के बाद आएगा तो ऐसे बन जाएगा, और अगर एस सन के बाद एक और एस और आ जाए तो अंदर की तरफ बन जाएगा। तो ये रूल आपको अच्छी तरह से फॉलो करने समझने हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो इस क्लास को हम यहीं अब ख़त्म कर रहे हैं, और अगली क्लास में फिर हम आपको बताएंगे, डिक्टेशन रखेंगे और अगले विशेष रूल फिर बताए जाएंगे। और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और बच्चों को बताइए कि शॉर्ट हैंड में आप कितनी जल्दी कामयाब होते हो सरकारी नौकरी के लिए। थैंक यू।